الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں ہم عوام کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ خود فیصلہ کر لینا پھر۔ یہ وسائل بخشش ہے، الیاس قادری کی لکھی کتاب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، وسائل بخشش۔ یہ دیکھیے آپ کیا لکھا ہے، پڑھیے آپ۔ تیرے در سے منگتوں کا گزارا یا محمد شاہ، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا محمد شاہ، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا محمد شاہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا محمد شاہ، گناہوں کے مرض نے کر دیا ہے نیم جاں مجھ کو، تم ہی آ کر کرو اب کوئی چارہ یا محمد شاہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے کو علماء نے بے ادبی لکھا ہے۔ فتاوی شارح بخاری میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کر رہے صاحب۔ یہ دیکھیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ نعت شریف لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بتائیے آپ، جو چیزیں اللہ سے عرض کرنا چاہیے وہ اولیاء کرام سے لوگ عرض کرنے لگے زمانے میں۔ خدا کے خوف سے روئے عشق نبی، خدا کے خوف سے روئے، خدا کے خوف سے روئے، نبی کے عشق میں روئے، عطا کر دو چشم تر خدارا یا محمد شاہ۔ یہ سمجھ میں یہ کس طرح کا انہوں نے کلام لکھا ہے، نہ کلام میں کوئی جاذبیت ہے نہ حلاوت ہے، بس لکھتے چلے آنا کہ ہم بہت بڑے وہ ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ سلام کا مذاق بنایا ہے، تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اب پڑھیے آپ سلام پورا، اس میں کچھ شعر تو صحیح ہیں لیکن کچھ شعر ایسے ہیں جو آپ خود کہو کہ یار یہ کیا سلام لکھا ہے۔ جو یہ لکھا ہے، تو عرب کی حسین وادیوں کو اور سنگریزوں اور آبادیوں کو، چلو یہ تو خیر ایسے کوئی بات نہیں اس میں، لیکن اور میں بتا رہا ہوں آپ کو جامع بھی دیکھیں۔ انہوں نے جس طرح سلام کا مذاق بنایا وہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، واقعی سلام کا مذاق بنایا اس میں سے۔ یہ دیکھو کوئے محبوب کی بکریوں کو مرغیوں بکریوں لکڑیوں کو، کوئے محبوب کی بکریوں کو مرغیوں بکریوں لکڑیوں کو، دیکھیے تن کے وہاں کے اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، بلکہ تن کے اٹھا کر۔ یہ دیکھو کیا سلام ہے کہ سلام کا مذاق بنایا ہے۔ یہ دیکھو سنگریزوں پتھروں کو، اونٹ گھوڑوں اور خروں اور خچروں کو، یہ دیکھیے یہ سلام ہے۔ وہ آپ خود سمجھو یہ سلام ہے کیا ہے، سلام کا مذاق ہے۔ کیا لکھا ہے، سنگریزوں کو پتھروں کو، اونٹ گھوڑوں خروں خچروں کو، استغفر اللہ، خچروں کو گدھوں کو یعنی، اور پرندوں پہ نظریں جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ یہ کوئی سلام ہے؟ یہ آپ کو سمجھا آپ ہے۔ اور اس طرح کے ان کے بہت سارے شعر ہیں جس پر بڑی گرفت کی ہے علماء نے، جس پر یعنی گرفت کی گئی ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھ رہی ہے۔ ابلیس کا رقص نام سے کتاب ہے، جناب محمد سعید صاحب انجینئر نے لکھی تھی۔ یہ دیکھو آپ، تو درختوں کو جھاڑیوں کو، ان کی گلی کی سب گاڑیوں کو۔ اب گلی میں جو گاڑیاں ہیں تو دیوبند والوں کی ہیں، وہ جن کو وہابی کہتے ہیں، ان کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، سب حکومت نجد والوں کی، ان کی گاڑیوں کو۔ تو درختوں کو جھاڑیوں کو، ان کی گلی کی سب گاڑیوں کو، ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کہنا۔ بتاؤ دیوبند والوں کی اور جن کو وہابی کہتے ہیں ان کی گاڑیاں، ان کے اوپر ہاتھ ادب سے لگائیں، اور امام کعبہ کو مسلمان نہیں مان رہے۔ یہ اتاری لوگ جتنے بھی اتاری ہیں، امام کعبہ مسجد نبوی کے امام کو، وہاں کے مؤذنوں کو مسلمان نہیں مانتے، بلکہ جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں، ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ وہ بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں نہیں وہ سنی بہت ہیں۔ کون سے سنی ہیں؟
कौन से सुन्नी है जो वो इमाम काबा के, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? वहाँ तो घर में पढ़ने का रिवाज ही नहीं है, बिला वजह झूठ बोलते हैं सुन्नी बहुत है, सुन्नी बहुत है। कौन से सुन्नी है भाई? टोटल सुन्नी है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ के सभी लोग सुन्नी हैं। अब सुन्नी बहुत का क्या मतलब है? ये दावत इस्लामी वाले वहाँ के लोगों को मुसलमान नहीं मानते, मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोगों को मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के इमामों को नहीं मानते, वहाँ के उलमा को नहीं मानते। कहते हैं नहीं नहीं, कौन कह रहा है? अरे तो आके बताओ ना, कौन से दिन है तुम सुन्नी मुसलमान मानते हो? चल के दिखाओ, हम उम्रे का टिकट देंगे, चल के बताओ। यहाँ से 10 लोगों का टिकट मैं दूंगा, तुम बताओ तो सही किसे किसे तुम सुन्नी मानते हो, मुसलमान मानते हो। हम 10 टिकट का इंतज़ाम करेंगे, 20 का करेंगे। चल के 10 आदमी दोनों तरफ के जाएंगे, 10 तुम्हारे जाएँ, 10 तुम्हारे जाएँ, और 10 बीच वाले जाएँ, 30 लोग जाएँ। 30 का टिकट का इंशाल्लाह मैं इंतज़ाम करूँगा उम्रे का। बताओ तो सही कौन से तुम्हारे सुन्नी है तुम्हारे हिसाब के मालोग हैं? ये देखो क्या लिखा है, बैंगनों भिंडियों तुरैयों को, गोभियों गाजरों मूलियों को, आँख से लौकियों को लगाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। यहाँ वहाँ के लोगों से तो मोहब्बत कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ों से, लेकिन वहाँ के इमाम से मोहब्बत नहीं कर रहे, वहाँ के इमाम को काफिर समझ रहे हैं। यही जिन्होंने किताब लिखी है वो भी नहीं पढ़ते नमाज उनके पीछे, ये इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। पहले पढ़ते थे, बाद में नहीं पढ़ रहे, पब्लिक के डर से, यानी मौलवियों के डर से नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया। पहले उन्होंने पढ़ी, वो नमाज़ें दोहराई नहीं है, पहले उन्होंने पढ़ी, खुद इकरार है कि वो मुफ्ती अब्दुल हनी साहब ने मना किया जब से मैं नहीं पढ़ता। पहले पढ़ते थे, वो नमाज़ें कब दोहराई हैं? कहना सेबों को और आड़ुओं को, केलों को और जर्द आलूओं को, तरबूज यानी सर पे तरबूज उठाएं, सर पे यूँ तरबूज उठाएं, फिर सलाम कहें, अस्तगफिरुल्लाह। तरबूज सर पे उठाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना, यानी तरबूज सर पे उठाओ, फिर अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाकर सलाम पेश करो। ये अदब है कि बेअदबी है, आप खुद समझो। और तरबूज सर पे उठाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। तू कनादील को, अच्छा इस सलाम के बारे में आप बरेली से फतवा मंगवा लें, अगर वो सही करार दें चलो मेरी बात मत मानो, बरेली मुबारकपुर मत भेजना इसको। मुबारकपुर अगर भेजोगे तो सही करार दे देंगे। मुबारकपुर वाले तो इनकी हर बात को सही करार दे देंगे। जो बाल मुबारक के बंटवाया उसको भी सही करार दे देंगे, मीलादनामा पढ़वाया उसको भी सही करार दे देंगे, लब्बे की अफ्तार के नारे लगवाए मुबारकपुर के मौलवी लोग तो उसको भी सही करार दे देंगे। वो तो बरेली की मुखालिफत में मुबारकपुर के लोग, अब जैसे बरेली नाजायज़ करार देगा, मुबारकपुर के उलमा उसको जायज़ करार देंगे। तो आप तो मरकज़ जैसे बरेली मान रहे हो, बरेली से मंगवाओ इस बारे में कि ये क्या है, या मारेरा से भेजो, मारेरा वाले क्या कहते हैं इस बारे में। तू कनादील को, कुमकुमों को, तार स्विच और तू कूलरों को ठंडा पानी किसी को पिलाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। जाओ बरेली लाओ, मैं 20 आदमियों का पैसा मैं दूंगा, अगर बरेली वाले इसको सही साबित कर दें। 20 आदमियों का 20,000 रुपये मैं दूंगा टिकट आने जाने का, मगर तैयार हों पहले और यहाँ के बताएं, आम करें वो फतवा। ऐसे नहीं दिया जाएगा पैसा, शर्त के ऊपर दिया जाएगा कि वो फतवा यहाँ आम किया जाएगा। आप ये देखो, आप क्या लिखा है, कैंचियों जाने क्या क्या लिखा है खूंटियों को, टोटियों को, हर तरह की जड़ी बूटियों को, चींटियों को, खूंटियों को, हर तरह की जड़ी बूटियों को बार बार इन पे नजरें जमा कर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। चावलों, रोटियों, बोटियों को, मुर्ग अंडों को, मछलियों को, सब्जियों को वहाँ की पका कर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। थालियों को, प्यालों को कहना, मिर्चों और मसालों को कहना। चाय की केतली को उठाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। बताओ, चाय की केतली उठाकर सलाम पेश किया जाएगा क्या? और देखो आप, ये का काश होता मैं सख्त सैयदों का बन के दरबान पहरा भी देता। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये कह रहे हैं काश मैं तो कुत्ता होता, ये दिख रहा है, काश होता मैं सख्त सैयदों का। क्या सैयद हज़ार कुत्ता पालते हैं? क्या सैयदों की खिदमत करने के लिए कुत्ता बनना ज़रूरी है? इंसान बन के तो ज़्यादा सवाब है और भी ज़्यादा फजीलत के लायक है। कुत्ता बनकर ये कह रहा है कि मैं काश होता मैं सख्त सैयदों का, यानी सैयदों का मैं कुत्ता होता। क्या इंसान बन के खिदमत नहीं कर सकते सैयदों की? कितनी तौहीन सैयदों की हो रही है, सैयदों की भरपूर तौहीन हो रही है। लेकिन इंसान है कि पैसा ले रहा है, दौलत दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, तो 50-50 हज़ार एक मुबल्लिग को दे रहे हैं, बस खुश हैं। वही बरेली वाले थे जिनको गुस्ताखियाँ नज़र आती थी। ये सब बातें देवबंद वालों की अगर इसी तरह की बातें होती, गुस्ताखियाँ, उस पर कुफ्र के फतवे, अब इनकी हैं तो कोई गुस्ताखी नहीं है, यानी अब इनकी हिमायत में आ चुके हैं पैसा ले लेने के बाद। या सोचते हैं देवबंदियों के मुकाबले में चलने दो, कुछ भी बकरा चलने दो, कुछ भी लिख रहा चलने दो। यानी मतलब ये हो गया कि अगर कोई देवबंदी की मुखालिफत में हो कोई फ़िरक़ा, तो फिर वो कुछ भी करे, गुस्ताखियाँ करे, कुछ भी करे, सब माफ़ है। ये मिजाज हो गया उलमा रज़विया का, 5वें मसलक वालों का।
काश होता मैं सख्त सैयदों का बन के दरबान पहरा भी देता, रब ने भेजा है इंसान बनाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना है। यानी कह रहा है कि मुझे तो अल्लाह ने इंसान बना दिया, काश मैं तो कुत्ता होता। तमन्ना कर रहा है कि मैं काश कुत्ता होता तो सैयदों की खिदमत करता, काश मैं कुत्ता होता। देखा है, काश होता मैं सख्त सैयदों का, यानी सैयदों का कुत्ता होता। फिर आगे लिखा रब ने भेजा है इंसान बनाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। बरेली भेजो आप ये सलाम, अगर वहाँ से जवाब आ जाए इस बारे में कि हाँ ये सही है, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल कहेंगे नहीं ये सलाम बिल्कुल गलत और तौहीन पर मबनी है, साफ साफ। और जो तौहीन करे उसके बारे में क्या हुक्म है, क्या उससे मुरीद हो सकते हैं, क्या उसको अमीर अहले सुन्नत कह सकते हैं? मुफ्ती आलम हिंद को तो अमीर अहले सुन्नत कहते नहीं, उनके मुरीद लोग। अजहरी मियाँ साहब, मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब, उनके मुरीद लोग उनको अमीर अहले सुन्नत नहीं कहते। और जितने भी पीर हैं आज के दौर उनको अमीर अहले सुन्नत नहीं कहते, मारेरा वालों को नहीं कहते, बिलग्राम वालों को नहीं कहते। इनको क्यों अमीर अहले सुन्नत कहना है? बरेली वाले भी बहुत सारे कहने लग गए इनको अमीर अहले सुन्नत। अरे भाई जो आलिम नहीं, कारी नहीं, हाफिज नहीं, मुफ्ती नहीं, उसको अमीर अहले सुन्नत क्यों कहा जाता है? पूरी दुनिया के सुन्नियों का सरदार, अमीर के माने सरदार, पूरी दुनिया के आलिमों का सरदार। जामे अज़हर मिस्र के आलिम तो इनको मानते ही नहीं है, फिर क्यों सरदार कहा जा रहा है इनको पूरी दुनिया के आलिमों का और सुन्नियों का? मक्का शरीफ, मदीना शरीफ के लोगों को ये मुसलमान नहीं मानते, जबकि वह सब सुन्नी है, उनको ये मुसलमान नहीं मानते। अत्तारी लोग मुसलमान नहीं मानते, नमाज नहीं पढ़ते, जुमा भी नहीं पढ़ते। अब 7 जुमे जो छोड़ेगा हज करने जाएगा तो क्या उसका हज हो जाएगा? हज कबूल होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पूछ डाल दिए, 3 जुमे। और जो हज करने जाएगा 40 दिन लगते हैं, ये एक भी नमाज जमात से नहीं पढ़ते हैं। अत्तारी लोग हैं, इनके मानने वाले बिरादरान एक भी नमाज जमात से नहीं पढ़ते, न जुमा पढ़ते। फिर कुर्बानी क्यों करते हैं भाई? कुर्बानी क्यों करते हैं? फिर वहाँ से कफन क्यों लेके आते हैं? फिर वहाँ पर अपना आदमी दफन क्यों करते हैं? दफन भी कहीं और ले जाके करो। क्या ये कह दो कि भाई यहाँ तो इनका इमाम नमाज़ पढ़ाएगा, मक्का शरीफ का, मदीना शरीफ का, जिसके बीच हमारी नमाज होगी नहीं। और यहाँ के इंडिया में तो फतवे लगाते हैं, कोई देवबंद वाले की जनाजा पढ़ ले तो साहब इस्लाम से खर्च हो गया। और जो हाजी मरता है तो वहीं के लोग तो नमाज़ पढ़ाते हैं, वहीं के इमाम तो नमाज़ पढ़ाते हैं। जितने भी हाजी मरे अब तक लाखों की तादाद में मर गए, क्या किसी और ने नमाज़ पढ़ाई? इंडिया के आदमी ने। अभी ताइफ में जो आदमी मरा है, ताइफ में जो मौलवी साहब का इंतकाल हुआ है, किसने नमाज़ पढ़ाई है? ताइफ वालों ने क्या वहाँ पर ताइफ के इमाम ने इमामत नहीं की? जो अभी मौलवी साहब का ताइफ में इंतकाल हुआ एक्सीडेंट में, किसने नमाज़ पढ़ाई थी? अब बहाना बनाते हमने जाके पढ़ाई, तो भाई गुस्ल किसने दिया, कफन किसने दिया, दफन किस? वहाँ के कब्रिस्तान में क्या आप खुद अपनी मर्ज़ी से दफन कर दोगे? है क्या वहाँ खुद ले जाके आप गुस्ल देने लग जाओगे? तरह तरह के झूठ बोलते हैं कि हमने अपने कमरे में ले जाकर गुस्ल दिया, ये करा वो करा, जाने क्या क्या झूठ बोल दी जाती हैं सब बातें। ताइफ में जो भी एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ तो किसने नमाज़ पढ़ाई? ताइफ वालों से पूछो आप। ये देखो आप क्या लिख रहे हैं, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों ना हो वालिहाना प्यार, मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में इसका बेड़ा पार है। ये देखो मदनी चैनल देखोगे तो जन्नत में जाओगे, ये भी लिखा हुआ है। मदनी चैनल की मुहिम है नफ्स शैतान के ख़िलाफ़, जो भी देखेगा करेगा इंशाअल्लाह एतराफ़। अब देखो आप, मैं बताता हूँ आपको, ये देखो आप क्या लिखा है, ये देखो मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, अरे वाह, ये देखो मदनी चैनल हुब्बे अहमद में रुलाता है तुम्हें, और शराब इश्क़े मोहम्मद की पिलाता है तुम्हें खूब। देखो क्या क्या है यार, मदनी चैनल नारे दोज़ख से अमा दिलवाएगा, यानी मदनी चैनल नारे जहन्नम से बचाएगा। मदनी चैनल लिखा है नारे जहन्नम से बचाएगा, और लिखा है इंशाअल्लाह आपको बाग़ जन्नत दिलवाएगा। बताओ, जन्नत दिलवाएगा मदनी चैनल? बेटा नहीं, मदनी चैनल जन्नत दिलवाएगा क्या? बताओ क्या जन्नत दिलवाएगा? लिख रहा है इंशाअल्लाह आपको बाग़ जन्नत दिलवाएगा, जन्नत दिलवाएगा। मदनी चैनल ख़रीदो, 10,000 रुपये में जन्नत, 10,000 रुपये में जन्नत, कोई कहेगा 5,000 रुपये में जन्नत। फिर तो कल को ऐलान होने लगेगा कि कैसे कि मदनी चैनल देखो जन्नत मिल जाएगी, है कि 5,000 रुपये में जन्नत, इतनी सस्ता हो गई। 10 वो शमसुद्दीन मकराने वाला भी हक बात पूरी नहीं बोलता है, इसके ख़िलाफ़ बोले ना, जब जाने हक बात बोलने वाला नहीं बोलेगा। सोचते हैं ये तो अपना आदमी है, हर कुछ भी करने दो, अपना देवबंदियों को पकड़ो। कह रहा है कि वो काबे का इमाम 18 बार खुजाता है, 18 बार खुजाता है। शमसुद्दीन मकराने वाला झूठ बोल रहा है, स्टेज के ऊपर झूल रहा है।
पब्लिक कोई पूछ रही थी कि 18 बार तूने कैसे देख लिया? कह रहा मैं हती में काबा में खड़ा हो गया, मैं टेक लगा के खड़ा हुआ तो देखा काबे का इमाम 18 बार गुजारा था। अस्तगफिरुल्लाह, 18 या 15 बार बता रहा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे शमसुद्दीन मकरानी साहिब, इसके खिलाफ बोलो ना, जब जाने तुम हक बात बोलते हो। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, न ये बोलेगा कि इसने ये गलत लिखा है, कुछ भी नहीं बोलेगा। सोचेगा अपना आदमी है, कुछ भी करे यार। देवबंदी भी यही सोचते हैं बहुत से कि अपना आदमी। देवबंद वालों ने तो खैर फतवा लगाया, उनकी बात में देखो, मैं नहीं कहता कभी देवबंदी बनो, मैंने कभी नहीं कहा, ना मैंने कहा भाई बरेलवी बनो, लेकिन उलमाए देवबंद ने अमीर तबलीग जमात पर फतवा लगाया, सख्त गिरफ्तगी, सख्त अल्फाज में फतवा लगाया। उलमाए देवबंद की इस बहादुरी पर कुर्बान जाना चाहिए। मगर मुजाहिद मिल्लत फ़ख्र अहले सुन्नत मौलाना यूसुफ वापी वाले बहुत सख्त नाराज़ हैं कि वो दोबारा वहाँ पर क्यों गए, वहाँ पर उनका बयान क्यों करवाया। इस मामले में मुजाहिद मिल्लत फ़ख्र अहले सुन्नत मौलाना यूसुफ साहब कासमी जो वापी वाले हैं, वो लायक दादो तहसीन है, वो हक बात कहते हैं। उन्होंने बिल्कुल सब गिरफ्त की। और कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ दिन बाद मीडिया में हो जाएंगे, ना हम देवबंदी रहेंगे ना बरेलवी, हम तो अब अतर हुसैन काजी की तरह रहेंगे जो बीच में है। अतर हुसैन काजी बीच में, हम भी बीच में रहेंगे। वो ऐसे हो जाएंगे, मेरी तरह हो जाएंगे, क्योंकि यार चलो हम भी आपके साथ हैं यार, ये तो सब ऐसे ही चल रहा मामला। लेकिन उलमा देवबंद की तारीफ़ तो करना पड़ेगी। उन्होंने वहाँ पर फतवा लगाया और सख्त अल्फाज, मगर दो टुकड़े होंगे तबलीग जमात में, खैर होने दो, उससे कोई बात नहीं। एक तबलीग जमात में छूरा है, एक मरकज़ है, एक शूरा है। अब इलियास काजी जमात में 3 हो गए। दाऊद इस्लामी 165 इमाम लेके अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना काजी ज़हीरुद्दीन खान साहब ने इमामों को जमा करके ज़करिया मस्जिद में दूसरी जमात बनाई, इसका नाम है सुन्नी दाऊद इस्लामी। फिर ये जब से दाऊद इस्लामी वालों ने चैनल को आम किया तो तीसरी जमात अहमदाबाद गुजरात में, इसका नाम है सोसाइटी दाऊद इस्लामी। बरेलियों में 3 हो गए इसी जमात में, देवबंद वालों में 2 हो गए। चलो ये तो चलता रहता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़रा ये देखो, समझो यार, कम से कम ऐसी बातें अगर मानेंगे तो क्या हमारा ईमान रहेगा कि नारे दोज़ख से बचाएगा। ये बताइए आप, ये लिख रहे हैं नारे दोज़ख से बचाएगा, यानी टीवी 10,000 में जन्नत मिल जाएगी। वो तो 10,000 में जन्नत, मदनी चैनल नारे दोज़ख से अमान दिलवाएगा, इंशाअल्लाह आपको बाग़े जन्नत दिलवाएगा, जन्नत दिलवाएगा। वो दुआ भी कर रहे हैं, ये देखो दुआ भी करिए। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, ये दुआ मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, इसके इस पे हो रहमत खुदा की करम सरकार का, ये दुआ भी हो रही है कि जो इसमें मदनी चैनल में हमारा साथ देगा और उस पर अल्लाह की रहमत हो। ये देखो दुआ भी हो गई। और 10,000 रुपये में जन्नत, मदनी चैनल देखो, टीवी ले हो, जन्नत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो, ना तारी बनो, ना शाकिरीन, ना तबलीग जमात, ना अहले हदीस, ना मौजूद, सबको मुसलमान मानो और इन चक्रों में न पड़ो। बिलावजह ज़कात अपनी दे रहे हो, ज़कात सही जगह दो, गरीबों का हक़ है। कुरान में अल्लाह ने गरीबों के लिए, कुरान में फरमाया इन्नमा सदक़ात लिल फ़क़रा, बेशक सदक़ात फ़कीरों के लिए, मसाकिन के लिए। ऐसे तो हीले बहाने से कुछ भी जायज़ कर लो साहब, वो हीला कर लेते हैं, बहाना कर लेते हैं, ऐसे जायज़ कर ले। अरे 50 बच्चे ला के मैं भी फिर दारूम खोल लूँ कल को कोटा में, 10 बच्चे अपने स्टूडेंट से ले आऊँ और यहाँ पर कमरे में रख लूँ कि दारूम चल रहा है, 20 बच्चे ला के रख लूँ, 2 पढ़ाने वाले रख लूँ, तय कर लूँ कि यार तुम्हें 10-10 हज़ार मिलेंगे, तुम अरबी पढ़ा देना, तुम फ़ारसी पढ़ा देना, तुम क़रात पढ़ा देना, ताकि नाम हो जाए कि अतर काजी दारूम चला रहा 20 बच्चों का। फिर मैं 20 लाख रुपए चंदा करूँ, 2 लाख रुपए खर्चा कर दूँ बच्चों के ऊपर के देखो हमने खर्चा भी तो किया है। 2 लाख के 2 कमरे भी बना दूँ, देखो कमरे भी तो बना रहा है। 16 लाख मेरी बैंक में जा रहा है, मेरे पेट में जा रहा है। वो फिर आदमी नहीं देखेगा 16 लाख अतर काजी के पेट में जा रहा है, वो नहीं देखेगा। वो तो देखेगा साहब 2 कमरे बना दिए, बच्चों को फ्री पढ़वा रहे हैं साहब, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सब दिखाने के लिए कुछ है, हाथी के दांत दिखाने को कुछ, खाने में कुछ और होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए।